Hello, dear pharmacist. Welcome back to my YouTube channel Pharmacrack Odisha. तो आज हम क्लास करेंगे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का। ठीक है। तो पहले हम 60 क्वेश्चन कर लिए थे और अब हम बाकी का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो चलो बिना किसी देर से आज का क्लास शुरू करते हैं। ठीक है। Question number 61. If prescription for a Schedule H1 medicine is incomplete, what should the pharmacist do? Option A. Dispense immediately. Option B. Clarify the prescription before dispensing. Option C. Replace the medicine with another drug. Option D. Dispense with the prescription. Schedule H1 में क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग विथ स्पेशल रिकॉर्ड। ठीक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? ऑप्शन ए तो नहीं है। ठीक है। और ऑप्शन सी ये भी नहीं है। ऑप्शन डी ये भी नहीं है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द आंसर। क्लैरिफाई द प्रिस्क्रिप्शन बिफोर डिस्पेंसिंग। ठीक है। Question number 61. A pharmacist receives a Schedule X prescription with missing required information. What is the most appropriate action? Option A. Dispense immediately. Option B. Verify and clarify the prescription before dispensing. Option C. Sell the medicine without prescription. Option D. Give another medicine. Schedule X में क्या होता है? नार्कोटिक एंड सब्सटेंस आता है। ठीक है। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द आंसर। वेरीफाई एंड क्लैरिफाई द प्रिस्क्रिप्शन बिफोर डिस्पेंसिंग। ठीक है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63. A patient asks for an H1 antibiotic without a prescription because the same medicine was prescribed previously. What should the pharmacist do? ठीक है। तो H1 एंटीबायोटिक, H1 शेड्यूल क्या होता है? प्रेस्क्राइब्ड ड्रग विथ स्पेशल रिकॉर्ड। ठीक है। तो चलो फार्मासिस्ट क्या करना चाहिए उस टाइम? ऑप्शन ए. डिस्पेंस इट बेस्ड ओनली ऑन प्रीवियस यूज. ऑप्शन बी. फॉलो द एप्लीकेबल प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट्स. ऑप्शन सी. डिस्पेंस वन डोज ओनली. ऑप्शन डी. सब्स्टिट्यूट अनदर एंटीबायोटिक विदाउट कंसल्टेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी द आंसर। फॉलो द एप्लीकेबल प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। Question number 64. During inspection, a pharmacist is unable to produce required record for controlled prescription medicine. This may indicate. ठीक है। Unable to produce required record for controlled prescription medicine. Option A. Proper compliance. Option B. Regulatory non-compliance. Option C. GMP compliance. Option D. Cosmetic compliance. इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द आंसर। रेगुलेटरी नॉन कॉम्प्लायंस। ठीक है। Explanation. Required record must be maintained as prescribed for medicine subject to additional record requirements. Question number 65. A pharmaceutical company publishes a misleading therapeutic claim for a drug. Which legislation may apply? Option A. Drug and Magic Remedies Act 1954. Option B. Pharmacy Act 1940. Option C. NDPS Act 1985. Option D. Schedule N. तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द आंसर। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66. Which section of the Drug and Magic Remedies Act deals with misleading advertisement relating to drugs? Option A section 3, option B section 4, option C section 5, option D section 7. इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द आंसर। सेक्शन 4। ठीक है। 67. Section 3 of the Drug and Magic Remedies Act primarily deals with option A. Prohibition of advertisement for certain disease and disorder. Option B. Pharmacy registration. ऑप्शन सी GMP. ऑप्शन डी नार्कोटिक ड्रग स्टोरेज। 3 में क्या होता है? ऑप्शन ए इज द आंसर। प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर सर्टेन डिजीज एंड डिसऑर्डर। ठीक है। 68. Section 5 of the Drug and Magic Remedies Act deals with option A. Advertisements relating to magic remedies. Option B. GMP. Option C. Pharmacy registration. Option D. Drug manufacturing license. तो इसका आंसर क्या है?
ऑप्शन ए इज द आंसर, एडवर्टाइजमेंट्स रिलेटिंग टू मैजिक रेमेडीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, व्हिच एक्ट इज नोन एज द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट? Act 23 of 1940, Act 80 of 1948, Act 21 for 1954, of Act 61 for 1985. तो Act 1954 ईयर 1954 ईयर होता है मैजिक एंड ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट का। तो आंसर है ऑप्शन सी, एक्ट 21 1954। ठीक है। 70, the NDPS Act is option A, Act 23 of 1940, Act 8 of 1948, Act 24 of 1954, Act 61 plus 85। तो हमारे NDPS एक्ट 1985 होता है और एक्ट क्या होता है 61। ठीक है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज द आंसर, एक्ट 61 ऑफ 1985। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज एक्ट नंबर। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कौन से ईयर में आता है? 1940। तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द आंसर, 23 ऑफ 1940। 72, द फार्मेसी एक्ट इज एक्ट नंबर। फार्मेसी एक्ट 1948 है। तो 1948 किसमें है? ऑप्शन बी में है, 80 ऑफ 1940। ठीक है। एक्ट होता है 8 और ईयर क्या होता है 1948। 73, द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट इज एक्ट नंबर। तो मैजिक रेमेडीज एक्ट कब आता है? 1954 में। तो 1954 किसमें है? ऑप्शन सी में है। तो आंसर क्या है? 21 ऑफ 1954। ठीक है। 74, the NDPS Act is Act number। नार्कोटिक ड्रग साइकोटिक सब्सटेंस 85 में आता है। ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द आंसर, 61 ऑफ 1985। 75, which pair is correctly matched? Drug and Cosmetic Act 1940, ऑप्शन बी फार्मेसी एक्ट 1954, ये आंसर गलत है। ऑप्शन सी एनडीपीएस एक्ट 1948, ये भी गलत है। ऑप्शन डी ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1985, ये भी गलत है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द आंसर, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ठीक है।